Welcome to our guest lecture with Adil Raza. Adil Raza, let me introduce him a little bit. Adil Raza has been in tech for last 15-20 years. You can find the earliest mention of him in newspapers back in 2005, 2006. I believe I read a newspaper article, Business Recorder, where his startup, he was working on cash on delivery in that time. And it's very, very interesting when you read that article, they have defined what cash on delivery is because it was too early. People didn't know what that is, So they mentioned that definition. It tells you how early that was in the ecosystem. And he, even after that, he's been working on a lot of startups. Some of them are, if you search, you can find them on internet. But I believe a lot of his work is not online, especially in the early days. And around 2010, his first startup was acquired by a company in US, and that led him to move from Lahore to East Coast US. And then, he worked there and he developed his first company, Mailmunch, and then Minder, which is a Muslim marrying website app. And now his latest startup is he believes is a lot more interesting, is a lot more, is growing a lot. वो है Unlayer. And उसके बाद वो जो दो स्टार्टअप्स हैं, Unlayer and Mailmunch, उनके ऑफिसेस लाहौर में हैं, somewhere in DHA. And third startup वो headquartered in London है. Adil Raza works, he lives in California, but he divides his time between Lahore and California. Me and Adil Raza go back years. I'm related to him through my wife. He's a cousin of my wife, but other than, we have deep conversations. He's helped me a lot. He's like a mentor. The MacBook that I'm using, I got it from him when I started my programming career. So I believe you can learn a lot from him. So with that, I welcome my guest, Adil Raza. Thanks for having me. मैं आमिर से काफी अरसे से, जब से probably course शुरू हुआ है, I've been getting updates कि मेरे students ये कर रहे हैं, मेरे students ने ये app बनाई. So it's very impressive, and if you have any questions, any way I can help you guys, I would love to. इसके अदील फिर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये I wanted it to be a discussion, lecture नहीं discussion, and we love that. अब शुरू स्टार्ट करते हैं. हमें नईमा का एक क्वेश्चन था. नईमा आप स्टार्ट करें वहां से, फिर गिरतम बनेगा. Hello. जी, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. I wanted to know about your educational background and your professional journey. Please tell us a little more about how did you start and. Sure. Okay. Thank you. अच्छा, मेरा educational background, I went to school, Beacon House, Lahore, Garden Town, and then I went to a pretty average college, nothing fancy, कोई खास, कोई ना grades वगैरह का कोई scene नहीं. Then I did bachelor's in business and information technology from University of Management and Technology, Lahore mein. It's a probably a second tier university. It's not as good as Lums and Fast, and not as bad as maybe some others. तो middle में कहीं आती है. Yeah, education मेरी बस ये थी. और but my education doesn't have anything to do with my entrepreneurial skills. वो तो I've been doing entrepreneurship since I think early 2001, since I was 16 basically. So वो skills मेरे मतलब practice करके develop हुए हैं. My education doesn't really have any role to play there. I just wanted a degree क्योंकि वो parents को भी satisfy करना होता है, and plus it's helpful for your grooming and फिर visa situation and immigration and all that. So you should have a degree, but it doesn't have any role to play after that. मतलब उसके बाद you're on your own basically. The skills you acquire, the experiences you get, वो सारे फिर आपके अपनी efforts के ऊपर होते हैं. मेरा personal opinion है ये, by the way. It's not. Some people might have different opinions. No, it makes sense, Adil. It makes sense. देखिए, I somehow am fascinated about lawyers. पाकिस्तान के जो बड़े lawyers हैं, let's suppose एतजाज हसन है, there are others,
वो उन्होंने वही डिग्रीज की हुई हैं, बट इट्स ऑल अबाउट देयर पर्सनल जर्नी, देयर पर्सनल स्टडी एंड ग्रोथ, आप कैसे करियर को लेके चलते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें तो कोई शक नहीं है. उसमें ये कि आपका अर्लीस्ट जो इंस्पायरेशंस क्या थी. एंड आई नो यू ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास हाउस होल्ड जहां पर आपके पेरेंट्स टेक सेवी नहीं थे, तो फिर ये इंस्पायरेशंस कहाँ से आई थी? क्योंकि अर्लियर पाकिस्तान में तो स्टार्टअप का बग ही नहीं था यार, लोगों को पता ही नहीं था. ये 2012-13 में स्टार्टअप शुरू हुआ है. मुझे आई रिमेंबर इन 2007 आस्किंग अ फ्रेंड, यार ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. आई रिमेंबर दैट. या नहीं, अच्छा, इसका इस तरह से है कि माय पेरेंट्स वर नॉट टेक सेवी, बट दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, और दे वर आल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ मी गेटिंग, जैसे मैं स्कूल में पहला बच्चा था जिसके पास 97 में एक पर्सनल कंप्यूटर आ गया था, ठीक है. तो दे वर वेरी सपोर्टिव के मेरी अगर कोई हॉबीज हैं या कुछ है तो दे गॉट मी व्हाटएवर टूल आई वांटेड टू प्ले विद. अब उस वक्त मैं सिर्फ गेम्स ही खेलता था, ऑब्वियसली व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू, या MIRC पे स्क्रिप्टिंग वगैरह. That's how I learned programming. My first program was basically a MIRC script, a bot, a chat bot. तो इस तरह की मतलब हॉबीज जो हैं, they play a big role in your career development. मैंने पाकिस्तान में अक्सर देखा है कि कल्चर नॉर्मली ये है कि जैसे बच्चे किसी चीज में इंटरेस्ट शो कर रहे हो ना, तो पेरेंट्स नॉर्मली कह देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो. तो दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिकली. हो सकता है जिस चीज में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हो वो ही आगे कैरियर डेवलप हो जाए. जैसे मेरे केस में मैं आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी ऑन द कंप्यूटर 18 आवर्स अ डे, लिटरली. उसमें गेम्स भी ऑब्वियसली काफी खेलता था, वो बाकी चीजें भी होती थी साथ साथ, बट माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव इन दैट रिगार्ड. तो एक तो ये था. एंड व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशंस, या इंस्पिरेशंस, या अच्छा, उस टाइम पे ना हम जो बिजनेसेस बना रहे थे या कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 2000 टू लेट्स से 2007 8 9, जब स्टार्टअप का वर्ड आना शुरू हो गया था, प्लान 9, इंक्यूबेटर, ये वो आना शुरू हो गए थे. उससे पहले हम लोग स्टार्टअप्स नहीं बना रहे थे, हम लोग बस नॉर्मल ऑनलाइन बिजनेसेस बना रहे थे. वी वर लाइक माय फर्स्ट ई-कॉमर्स बिजनेस, जिसका भी आपने लिंक भी भेजा चैट पे. दिस वाज a t-shirt startup. मतलब I didn't used to call it startup at the time. It was just an online t-shirt business. और हम लोग almost back in 2005 30 orders per day हमने achieve कर लिए थे. 30 orders t-shirts के online per day in 2005. So that was a huge. तब internet population was I don't know, maybe अब की निस्बत तो 100 गुना कम होगी, बहुत कम थी internet population at the time. तो 30 orders was a big achievement, but I had to shut it down. 300 रुपए की एक शर्ट होती थी जिसमें कैश ऑन डिलीवरी के भी कोरियर सर्विसेज वगैरह नहीं देते थे, कैश ऑन डिलीवरी. सो वो फिर हमने क्या किया था, पोस्ट ऑफिस की एक सर्विस होती थी VPP, जिसमें आप इमिटेट कर सकते थे कैश ऑन डिलीवरी. तो उसके थ्रू हमने स्टार्ट किया था. फिर पोस्ट में उसको, द रीजन आई शट इट डाउन वाज इट वाज वेरी अनरिलायबल. मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम टी-शर्ट्स भी शिप कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सबको पता ही होगा कि वो जो पोस्टमैन है वो कभी पैसे दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, कभी वो अपनी ईदी रख लेता था. मतलब वो लॉजिस्टिक्स जो है ना, रिलायबल नहीं थे. तो इवेंचुअली खैर फिर आई डिसाइडेड कि दिस इज नॉट अ बिजनेस आई वांट टू बी इन. आई वांटेड टू बी इन अ सॉफ्टवेयर बिजनेस. और फिर हमने 2006 में सॉफ्टवेयर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे. तो लैंग्वेजेस कैसे सीखी, कोडिंग लैंग्वेजेस कैसे सीखी और कौन सी सीखी, और उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है पिछले 15 साल में? वो बड़ा इंटरेस्टिंग. अच्छा, वो इस तरह से हुई है कि मी एंड मेरा मेल मंच पे जो को-फाउंडर है, हम दोनों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी स्क्रिप्ट्स बना के, चैटबॉट. क्योंकि इंटरेस्टिंग होता था ना काम, के आपने अपनी बैक इन 2001 आप अपनी चैटबॉट बना रहे हो, स्क्रिप्ट कर रहे हो, और उसमें जो लैंग्वेज थी वो MIRC का अपना एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती थी. लेकिन इट वाज गुड इनफ टू गिव मी एन आइडिया के कंप्यूटर्स को प्रोग्राम कैसे करते हैं. और उसके बाद बस फिर ASP आई थी, ASP.NET की बड़ी अच्छी सर्विसेज. उसके बाद PHP काफी पॉपुलर हो गई, वो सीखी. उसके बाद इवेंचुअली मतलब जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स आ गए, रिएक्ट आ गया, एंगुलर, नोड.js, फ्लटर. तो उसके बाद इस तरह से एवोल्यूशन होती है. बेसिकली मैंने फॉर्मली कभी भी प्रोग्रामिंग, मतलब आई डोंट हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस. आई नेवर स्टडीड प्रोग्रामिंग फॉर्मली, but I consider myself to be a good programmer, self-taught. Definitely, you have to be. You have 3 products in the market. You have to be. Yeah. Yeah. Although So- मैं अब उस पे खुद कोडिंग किए हुए मुझे इन प्रोडक्ट्स पे काफी टाइम हो गया है,
लेकिन अभी भी मैं इवेंचुअली मतलब बीच बीच में मैं डेफिनेटली पॉलिशिंग करता हूँ. जैसे CSS मेरा एक बड़ा कोर स्किल है. आई लव डूइंग CSS कोडिंग, तो वो मैं अक्सर CSS जो है ना वो फिर मैं खुद करता हूँ प्रोडक्ट्स की. जी. मैं चाहता हूँ कि Sir, मैं I चाह रहा have हूँ कि another मैं question. जी 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 continue. Sir, that's about your Mail Munch. How did the idea of Mail Munch came to your mind? Like being an entrepreneur, you find a problem and you try to solve that. So how did you do your research about this? अच्छा, मेल मंच का आइडिया इस तरह से आया था कि आई वाज एट अ सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस. इधर सैन डिएगो में थी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ल्ड के नाम से होती है, हर साल होती है कॉन्फ्रेंस, मतलब कोविड में नहीं हो रही, उससे पहले. तो उधर ना एक बड़ी आर्ग्यूमेंट चल रही थी तब. दिस वाज इन 2015 के, और उस वक्त फेसबुक बिल्कुल पीक पे ऊपर जा रहे थे ग्राफ्स, और फिर ट्विटर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था. अब तो फेसबुक के ऑब्वियसली ग्राफ्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ना फिर एक डिबेट थी कि क्या ईमेल मार्केटिंग डेड एंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग द फ्यूचर. तो उस पे एक लेक्चर मैंने अटेंड किया था, और उसमें उन लोगों ने एंड पे काफी पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स देके ना उन्होंने एक कंक्लूजन ये निकाला था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो ROI है ना, इट्स नोवेयर नियर ईमेल मार्केटिंग इवन नाउ, इवन इन 2021. कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके 1 मिलियन लाइक्स हैं किसी भी पेज पे, या इंस्टाग्राम पे आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, चलिए इंस्टाग्राम तो खैर अभी बड़ी अच्छी रीच है उसकी, लेकिन फेसबुक पे अगर आपने पूरा मार्केटिंग एफर्ट करके यू हैव अचीव्ड अ पेज जिसके 1 मिलियन लाइक्स हैं, नाउ अब उस पेज पे आप कोई पोस्ट लगाते हैं, तो बैक इन 2015 टाइप उस पोस्ट की रीच 1 मिलियन में से लेट्स से 500,000 लोग आपकी फ्री में पोस्ट देख लेते थे. बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी. लेकिन वही 1 मिलियन लाइक्स में अब आप अगर पोस्ट करेंगे उस पे, तो वो शायद 1000 लोग देखेंगे आपकी पोस्ट, या मे बी मैक्सिमम 5000 देख लेंगे. तो फेसबुक ने क्या किया, आपने इतने इन्वेस्ट किए पैसे, लाइक्स अचीव किए, सारा किया, फेसबुक ने रीच कम कर दी. अब अगर आपने उस पे रीच करनी है तो आपको एड चलाना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे देम मनी. ठीक है. ईमेल मार्केटिंग में इस तरह है कि कंसिस्टेंटली रीच जो है और एंगेजमेंट वो सेम रही है. अगर आपके पास 1 मिलियन ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट आपने बना ली और आप उनको ईमेल भेजते हैं, तो ऑन एवरेज 20% लोग तब भी ओपन करते थे, अब भी 20% लोग ओपन करते हैं. तो वो ईमेल का जो है ना, और फिर दूसरा ये है कि कोई आपको बंद नहीं कर सकता, मतलब कोई आपकी रीच कम नहीं कर सकता, यू ओन दैट मार्केटिंग एसेट. तो तब हमने सोचा कि ये तो फिर कोई टूल होना चाहिए जो आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो करने में हेल्प करे आपकी. और मेल मंच हमने फिर इस तरह से फॉर्म किया था कि उस वक्त ईमेल मार्केटिंग कंपनीज काफी सारी थी, मेलचिम्प था, कांस्टेंट कांटेक्ट, देयर वर अ लॉट ऑफ दोज. लेकिन जो क्रैक हमें नजर आया ना, जो गैप था मार्केट में, वो ये था कि वो लोग ईमेल भेजने पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अगर आपके पास ईमेल लिस्ट ही नहीं है तो आप मेलचिम्प नहीं यूज कर सकते थे एट दैट टाइम. तो हमने फिर ये फिल किया गैप कि हमने एक ईमेल लिस्ट बनाने के लिए एक टूल बनाया, और उसको इंटीग्रेट कर दिया सारे ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज के साथ. और अब ये है कि अब लेकिन मार्केट चेंज हो गई हुई है. अब सारी ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज ने को पता है कि ये एक टूल मिसिंग है, और उन्होंने जो है इस वक्त वो डाल दिया हुआ है, मतलब लिस्ट बिल्डिंग टूल्स डाल दिए हैं. इसका अच्छा एग्जांपल लिस्ट बिल्डिंग कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप शौकत खानम का वेबसाइट खोलेंगे ना, तो उस पे आपको पहले 5-10 सेकंड में ही एक पॉपअप नजर आएगा जिसपे नीचे मेल मंच लिखा होगा. वो हमारा शौकत खानम हमारा कस्टमर है. तो वो अब उधर से वो लोग अपनी ज़कात डोनेशन की लिस्ट कलेक्ट करते हैं, और उनका काफी अच्छे मतलब एंगेजमेंट रेट्स वगैरह हैं. तो इस तरह से आप डिफरेंट टूल्स हम प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी लिस्ट बिल्डिंग हो. इसी को मैं Sir, कंटिन्यू is करता हूँ. जी जी अली आप पूछें सॉरी. जी sir, is Mail Munch like a software as a service? आप उसकी आप services provide करते हैं, like एक को charge होगा जो recurring charge होगा, बिल्कुल. तो उसके बिल्कुल उसके मेल मंच SaaS है. साथ और उसके किस तरह like आप किस तरह increase करते हैं like users per month, like organic है, या do you have like a marketing budget, or हम्म. किस तरह increase अच्छा. किस तरह करते हैं, because obviously there's competition as well, हम्म. और उसको अच्छा, किस तरह बढ़ाते हैं? that's a great question. और basically दो questions होते हैं. एक अक्सर सवाल मेरे से लोग पूछते हैं कि early users कैसे लेके आते हैं, मतलब how do you get your first 1,000 users. और दूसरा फिर होता है कि उनको continually कैसे grow करते हैं. तो हम लोगों का ये है कि early users जो हम लेके आए थे वो तो सारे organic channel से थे. For example हमने
वर्डप्रेस की जितनी ऐप डायरेक्टरीज होती है ना, वर्डप्रेस की है, शॉपिफाई की है, वूकॉमर्स की है, बिग कॉमर्स की है, मैजेंटो की है, उनके लिए आप समझो इस तरह से है कि आप, अच्छा इसकी मैं अगर आपको लोकल एनालॉजी दूं ना, वो इस तरह से है कि आपने एक लेट से एक शॉप खोलनी है, दुकान लगानी है आपने, अब वो दुकान आप किसी भी जगह पे लेट से आप मतलब कोई घर रेंट करके किसी कमर्शियल एरिया में लगा लेते हो, वर्सेस वो दुकान आप एम्पोरियम मॉल या पैकेजेस मॉल में लगाते हो। अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अगर अगर आप अपनी किसी जगह पे लगाया और आपका ब्रांड नहीं है अभी, तो आपको सारा एडवर्टाइजमेंट खुद करनी पड़ेगी, फुट ट्रैफिक खुद लानी पड़ेगी, पार्किंग इश्यूज ये वो। वर्सेस आप एक मॉल में लगाते हो तो आपको फुट ट्रैफिक पहले से ही मिल रही है, सर्च क्वेरीज भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हमने क्या किया था शुरू में, हमने ऐप स्टोर जितने भी समझो ये मॉल्स थे ना, वर्डप्रेस डायरेक्टरी हो गई, शॉपिफाई स्टोर, हमने इन पे प्लगइन्स बनाए और फिर हम इंटीग्रेट करते थे एग्जिस्टिंग सारे ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइडर्स के साथ, उनकी भी ऐप डायरेक्टरीज थी, उस पे भी प्लगइन्स बनाए हमने। तो वहां से हमें अर्ली यूजर्स तो वहीं से मिलना शुरू हो गए, क्योंकि सबको जाहिर है इस तरह के टूल की जरूरत तो थी। अब लेकिन सिचुएशन ये है कि अब ये शुरू के यूजर ग्रोथ के लिए अच्छी बात होती है, लेकिन उसके बाद आप सस्टेन नहीं कर सकते इसको। अब हमने फिर क्या किया हुआ है, अब तो हमारा मतलब पेड एक्विजिशन चैनल है। पेड एक्विजिशन ये होता है कि आप गूगल एड्स चलाते हो, फेसबुक एड्स चलाते हो, पूरा एक फनल बनाते हो और परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो। अदील सॉरी, मुझे वो आपका पॉइंट समझ नहीं आया कि वो कहाँ पर आप प्लगइन लगाते थे अर्ली यूजर एक्वायर करने के लिए? प्लग इन डिफरेंट ऐप, जैसे iOS और एंड्रॉइड के केस में ऐप स्टोर आपको इन्होंने एप्पल ने और गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है। वो समझो एम्पोरियम मॉल और पैकेजेस मॉल आपको मिला हुआ है, आपने बस उसमें ऐप डालनी है अपनी, ठीक है। लेकिन वेब प्लगइन्स के लिए वो जो यही जो स्टोर्स है ना, वो डिफरेंट है, वो है वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी। अब एक मतलब कहते हैं कि 25% इंटरनेट जो है वर्डप्रेस पे चलता है। तो वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी बहुत मतलब बहुत आला गोल्ड माइन है, उसके अंदर ऑलरेडी सर्च क्वेरीज काफी हो रही होती हैं। तो एक हमने उस पे बनाया था। फिर शॉपिफाई एक मेजर चैनल है ई कॉमर्स के लिए, उस पे आप प्लगइन डायरेक्टरी बना सकते हो। इसी तरह विक्स का है, मैजेंटो का है, मतलब काफी सारे ऐप स्टोर्स हैं इस तरह से जिन पे आप अपना प्लगइन डाल सकते हो। देखो गोल ये है कि जब यूजर कोई चीज सर्च कर रहा हो तो आपकी ऐप उसकी नजरों से गुजरे, ठीक है। क्योंकि मॉल में भी दुकान लोग इसीलिए लगाते हैं ना, ये ब्रांड्स, ये खाड़ी इतने पैसे क्यों देके एम्पोरियम में लगाता है, उसका मेन मकसद ये है कि ऑलरेडी इतनी फुट ट्रैफिक आ रही है तो वो उनके स्टोर में भी आ जाएगी। तो इसी तरह से ये जो ऐप स्टोर, या आप 30% कट क्यों देते हो एप्पल को, बेसिकली आप कहो कि नहीं मैंने मेरी ऐप डाउनलोड, खैर एप्पल पे तो नहीं कर सकते, एंड्रॉइड पे तो कर सकते हैं, आप कहो मेरी ऐप डाउनलोड कर ले, लेकिन आप वो इसलिए कट देते हो क्योंकि वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो ऑलरेडी उनके ऐप स्टोर पे बिलिंग पेमेंट मेथड डला हुआ है लोगों का, उन्होंने बस आपकी ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है लिटरली। जस्ट टू ये गिव यू एन इस तरह से एग्जांपल, एम्पोरियम पे कंटिन्यू करने, मुझे पिछले दिनों पता चला कि एम्पोरियम में एंटर होते साथ ना सफायर का की शॉप है, उसका रेंट अगली 10 शॉप से ज्यादा है। जितनी फुट ट्रैफिक उतना ज्यादा रेंट। या सो या प्लीज आई गाइस, हैव अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं भी? जी प्लीज। मैं पूछना चाह रही थी कि आप कैसे गेज करते हैं कि योर यूजर लाइक्स द योर ऐप, या आप उसकी यूजर की पसंद नापसंद कैसे गेज करते हैं? अच्छा, इसमें ना मतलब काफी सारे ऑब्वियसली मैट्रिक्स हैं, डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं बिजनेस के, आप कितना डीप जाना चाह रहे हैं, क्या है। लेकिन अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, मतलब अगर आप ऐप वैसे शुगल के लिए नहीं बना रहे, आप उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा मैट्रिक है ना, और वाहिद मैट्रिक जिससे मैं कॉम्प्लीमेंट को गेज करता हूँ, वो ये है कि क्या कस्टमर आपको अपनी जेब से अपना हार्ड अर्न्ड मनी निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर कोई आपकी ऐप के लिए आपको पे करने के लिए रेडी है, तो दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन गेट। मतलब इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपको कोई कहता है हाँ हाँ आपकी ऐप बहुत अच्छी है लेकिन पैसे नहीं देना चाह रहा, तो बस इसका मतलब है कि वो फेस वैल्यू पे ही है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एंड पे आपका गोल यही है कि if even if one person is ready to pay you for something, that means you have something really good going on, कि अगले को इतनी वैल्यू नजर आई है कि वो आपको पैसे दे रहा है उस चीज के। या बट यूजर का बिहेवियर को आप गेज करते हैं? व्हाट आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स इज द न्यूरो मार्केटिंग थिंग। आपने कोई उस चीज को इनकॉर्पोरेट करे हैं? अच्छा, वो बिल्कुल हम तो मतलब वही मैं कह रहा था ना कि डिपेंड्स कि कितना डीप आपका चीज हो गई भी है।
अब ये सारी चीजें तब मैटर करती हैं जब आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर ली है, आपको मतलब ऐप, अब आपको पता है कि दिस इज अ वायबल थिंग। अगर आप शुरू में ही बिहेवियर ऑप्टिमाइजेशन में मतलब स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको कहते हैं प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन, कि अभी वो चीज उस जगह पे पहुंची नहीं और आप पहले ही उसको ऑप्टिमाइज करने में टाइम जाया कर रहे हैं। तो ये जो मतलब आप जो चीजें मेंशन करी हो ना, वो तब फायदा होता है जब आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रेडी हो गए हैं। अब आपने फनल्स को ट्रैक करना है कि कहाँ पे ड्रॉप ऑफ आ रहा है, कहाँ पे यूजर कौन सी स्क्रीन ज्यादा व्यू कर रहा है, कौन सी स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम लोग मिक्स पैनल भी यूज करते हैं, एम्पलीट्यूड भी यूज करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स की भी गोल ट्रैकिंग से बेसिक काम तो हो जाता है। तो वो बिल्कुल वो सारा कुछ हम करते हैं, लेकिन नॉट हमने ये स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2 साल इनटू द बिजनेस। शुरू में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये मतलब ये प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन है शुरू में। लेकिन आई थिंक अदील, उनका क्वेश्चन ये भी है कि शुरू में आप जब बना रहे हैं प्रोडक्ट, आपने फिगर आउट करना है ना कि कस्टमर को मेरी जो ऑफरिंग है एमवीपी में से क्या चीज बहुत अच्छी लगी है, कस्टमर मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्या चीज। मेरे ख्याल में उनका क्वेश्चन इस बारे में भी था। समीरा, एम आई राइट? सॉर्ट ऑफ असल में मुझे इंटरेस्ट है ना न्यूरो मार्केटिंग में एंड यूजर बिहेवियर में, सो उस लिहाज से पूछ रही थी। अच्छा, उसका नहीं, उसका फिर तो मतलब अच्छी बात है अगर आपका इफ यू आर ऑलरेडी इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट एंड दैट इज योर कोर स्किल सेट। तो बेसिक तो आप ऑनेस्टली गूगल एनालिटिक्स से भी यूजर का पैटर्न तो आप ट्रैक इजीली गूगल एनालिटिक्स से कर सकते हैं। और वो इस तरह से कि जैसे हमने अब मैं सलाम्स जो है इट्स बिल्ट इन रिएक्ट, नॉट इन फ्लटर। तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, रिएक्ट के गूगल एनालिटिक्स के प्लगइन्स और एम्पलीट्यूड के प्लगइन्स यूज किए हुए हैं, वो आपको एग्जैक्ट फनल्स तक बताता है। एंड इफ यू वांट आई कैन इवन शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू जी जी, प्लीज प्लीज। हाउ दिस वर्क्स। एक सेकंड, लेट मी जस्ट लॉग इन। अच्छा, ये मैं ना आपको एक एग्जांपल अब फनल दिखाऊंगा। डू यू गाइस नो व्हाट अ फनल इज? मतलब फनल ट्रैकिंग वगैरह का कुछ थोड़ा सा बेसिक आइडिया है? हमने कोर्स में कवर नहीं नॉट किया। रियली, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, अच्छा, ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही। डू यू गाइस सी माय स्क्रीन? ओके, यस। अच्छा, फनल ट्रैकिंग ये होता है कि बेसिकली आप अपनी ऐप में ना डिफरेंट स्क्रीन्स पे या जो भी आपने मतलब ट्रैक करना है, आप उस पे इवेंट्स फायर कर देते हो कि जब ये स्क्रीन खुलेगी तो ये इवेंट फायर कर देना, जब इस बटन पे टैप होगा तो ये इवेंट फायर कर देना। आप सिर्फ इवेंट्स फायर कर देते हो, उसके बाद आप उस ऐप में जो भी आप ऐप यूज करो उसमें आप फनल बनाते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मोबाइल ऐप का एग्जांपल नहीं है, ये वेब ऐप का एग्जांपल है, बट इट वर्क्स प्रीटी सिमिलर ऑन मोबाइल टू। अब ये हमारा एक मेल मंच का विजेट बिल्डर है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, डिफरेंट स्टेप्स है, एक विजिट है जिसमें पहला डिजाइन का स्टेप है, फिर अपीयरेंस, बिहेवियर, इंटीग्रेट और फाइनल पब्लिश का स्टेप है। अब हमने ट्रैक करना था कि कौन से स्टेप पे आके लोग ज्यादा फंसते हैं या कौन से स्टेप पे लोगों का मतलब वो ड्रॉप ऑफ होता है। तो व्हाट वी डिड वाज हमने ये इवेंट्स फायर कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये इस वक्त 73 मतलब ऑलमोस्ट 74% कन्वर्जन रेट है, विच इज ग्रेट। जब हमने ये किया था तब 40% पे था। ये आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप को ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स इंप्रूव करते करते ये कॉन्टिन्यूसली इस पे पहुंचा है। अच्छा, अब ये बता रहा है आपको लास्ट 30 डेज में फॉर एग्जांपल 2000 लोग पहले स्टेप पे आए। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, मतलब इस स्टेप पे सबसे बड़ा ड्रॉप ऑफ है अभी भी हमारा, और वो है ऑलमोस्ट 16% ड्रॉप ऑफ। मतलब ऑलमोस्ट 2000 लोगों में से 300 लोग जो हैं इस स्टेप पे ही छोड़ के चले गए थे। अब रह गए हमारे पास बाकी 1.6 थाउजेंड लोग। आगे वाले स्टेप्स देखें आप, उस पर बड़ा अच्छा कन्वर्जन रेट है क्योंकि वो हम ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। मतलब इस स्टेप से इस स्टेप पे 94% लोग आए, फिर अगले स्टेप पे 97% और 96%। तो इसमें ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो इस स्टेप पे है, कि डिजाइन के स्टेप पे कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से 16% ड्रॉप ऑफ आ रहा है। तो ये एक बेसिक टूल है जिसमें आप फनल बना के ट्रैक करते हैं। इसी तरह से हमने मतलब बहुत सारे फनल्स बनाए हुए हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। हमारे हर नया प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं, हर इवन के बहुत फनल होते हैं। एक एक चेंज जो है वो डॉलर्स में डिफरेंस क्रिएट करती है।
लास्ट हमने A/B टेस्ट जो एक किया था, एक छोटी सी चेंज प्राइसिंग चार्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स $10,000 का इम्पैक्ट कर देती है। एक में $10,000 कम रेवेन्यू, एक में 10,000। तो इस तरह ये डिपेंड करता है आपके ऐप के स्टेज पे है। जैसे जैसे स्टेज उसकी आगे जाती जाती है, ये चीजें उतनी ही ज्यादा मैटर करती जाती हैं। अगर देखें 10 लोग आ रहे होंगे तो आप ये डेटा आप नहीं कलेक्ट कर सकते, मतलब इसके लिए आपको चाहिए होता है एक लार्ज सैंपल साइज। अगर आपके 100 आ रहे हैं तो हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट नोटिसिंग अ बिहेवियर। उसके बाद 1000 आ रहे हैं तो और ज्यादा क्लस्टर्स और पैटर्न्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह से है। राइट Samira, जी, does that राइट, answer थैंक your यू। question? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली जो मुझे समझ आई है अभी तक, ये कि यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग ही है बेसिकली। दिस इज ऑल व्हाट यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग इज। बट Yes. समीरा, जो आप कह रही हैं न्यूरो मार्केटिंग, मैंने अभी सर्च किया है, आई डिड नॉट नो व्हाट दैट इज, बट मुझे अभी पता चला है व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर डूइंग इज द कटिंग एज। प्रॉब्ली मार्केट में 1% लोगों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। सो दिस, इफ यू विल बी डूइंग इट, तो ये आपका एक कटिंग एज, एक आपका यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा। प्रॉब्ली यू कैन गेन एज in the market through your cutting edge work, तो वो चीज फ्यूचर में आएगी। and probably people who have that background like you in biology, they know these things. बाकी लोगों को ये चीजों का अभी नहीं पता, they are not widespread जी जी, terms. इट्स क्वाइट अ न्यू थिंग एंड बट वो ये है कि थ्रू दिस मोबाइल ऐप आप यूजर के आई डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। सो उससे फिर यू कैन टेल वेदर द यूजर लाइक्स अ प्रोडक्ट और यूजर वुड लाइक समथिंग अदर। वो उसके हैंड फ्लिप से हो सकता है। सो दिस इज ऑल न्यूरो मार्केटिंग। मोबाइल This, डेटा by आप, the way, this सॉरी, sorry, आई डेटा जो है, this, सॉरी जी जी, हाँ नहीं गो अहेड आमिर। मैंने कहा जो आई डाटा है वो आप मोबाइल ऐप कैसे ट्रैक करेगी? वो उसको कैमरा उसने ऑन किया हुआ है, या वो कोई किस तरह कैसे बिल्कुल ट्रैक? बिल्कुल, यूजर को रिक्वेस्ट करके, यूजर को बता के कि वील ओके बी ओके ट्रैकिंग योर आई ओके, मूवमेंट्स थ्रू द कैमरा, और फिर कैमरा ऑन करके, तो ऑफ कोर्स विद सारे यूजर के कंसेंट से ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं इस तरह। Samira, this is something we do in salons, not obviously, मतलब कैमरा की परमिशन लेके आई ट्रैकिंग, तो वो तो काफी प्राइवेसी वो इन्वेजन है, लेकिन हम एक HDK यूज करते हैं, आई बिलीव एम्पलीट्यूड का ही है। वो क्या करता है, वो डिफरेंट पैटर्न्स ना, क्योंकि हर फोन में जायरोस्कोप होता है, तो वो डिफरेंट पैटर्न्स नोटिस करके एक पर्सोना बना लेता है हर यूजर का। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर लेट के यूं फोन यूज कर रहे हैं तो उसको पता है कि ये इस वक्त यूजर जो है वो लेटा हुआ है और वो मतलब अपने बेड पे शायद फोन यूज कर रहा है। अगर आप चलते हुए यूज कर रहे हैं तो वो जायरोस्कोप के डेटा से वो चेक, तो एंड पे वो आपको प्रोवाइड क्या करता है वैल्यू, कि आप ऑप्टिमल टाइम पे पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अच्छा, उबर इसके बारे में उबर बहुत मशहूर है इस बारे में, कि एग्जैक्ट जब आपने इधर यूएस में आपने उबर बुलानी होती है ना, तो उबर की नोटिफिकेशन आ जाती है, देयर आर दिस मेनी ड्राइवर्स अवेलेबल। तो वो क्योंकि उन्होंने वो यही पैटर्न्स और सिग्नल्स नोट करके ना, उन्होंने एक प्रोफाइल बना ली होती है यूजर की, और उसके हिसाब से पुश नोटिफिकेशंस आप उनको भेज सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल, इफेक्टिव एब्सोल्युटली, स्ट्रेटजी है। यस यस। और इसके काफी अच्छे अच्छे एसडीकेस भी अवेलेबल हैं, जो लिटरली आपने बस, यू डोंट हैव टू, क्योंकि ये खुद करने अगर आप बैठे तो यू नीड ईयर्स ऑफ वर्क एंड रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। तो आप करते क्या है, आप बने बनाए एसडीकेस हैं, लोगों की सर्विसेज हैं, आप वो अपने उसमें ऐड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देते हैं कि इस यूजर को इस टाइम पे पुश नोटिफिकेशन भेजनी है, इस यूजर को इस टाइम पे भेजनी है, और आप सारा ऑटोमेट कर सकते हैं प्रोसेस ये। जी अली, आपका हाथ काफी देर से खड़ा है। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपकी सलाम्स आपके बारे में है। You mentioned it as well. वो आइडिया आपको कैसे आया, and like is it like as successful as Mailmunch, or like there are others as well out there? तो वो किस तरह आइडिया आपके ज़हन में आया? It was called something else as well, Minder या It was called कुछ इस Minder, तरह का? yes. Minder, yeah. So it resembles Tinder though. So उसका ज़हन में That's where the कैसे आया idea आपको? stemmed from. अच्छा, वो इस तरह से था कि back in 2015 ही, हाँ, back in 2015 I was sitting with my co-founder, we were having lunch. तो I was born, raised and married in Pakistan. तो मुझे तो उसका इतना ऐसा आइडिया, मुझे मतलब पर्सनली मुझे नहीं आया इसका आइडिया, क्योंकि पाकिस्तान में we don't have this problem that we cannot find a good spouse or a good Muslim spouse, क्योंकि we run into
cousins and then university में, फिर office में, हर जगह ही Muslims हैं, तो it's not a problem we have there. लेकिन जैसे आप इधर यूएस में आओ ना, तो यूएस में ऑलमोस्ट मतलब 300+ मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 3 मिलियन मुस्लिम्स हैं, जिसमें से मैरिजेबल एज वाले मुस्लिम शायद 1.5 मिलियन के करीब हैं, मतलब रफ एस्टिमेट्स. अब वो सारे, यूएस इतना बड़ा है कि वो सारे स्कैटर्ड है, वो डेंस नहीं है. इट्स नॉट लाइक यूके में काफी डेंसली पॉपुलेटेड है मुस्लिम्स, लेकिन यूएस में दे आर ऑल स्प्रेड आउट. So finding a good spouse who's the same religion as yours, it's a big problem here in the US. तो यूं हमें आइडिया आया था. my co-founder is born and raised here, तो he knew, he got married here as well, तो उसको पता था कि क्या struggles होती हैं इधर to find a good spouse. तो हमने क्या किया, हमने मतलब literally we were sitting in a cafe और हमने कहा क्या नाम रखें इस ऐप का, नाम कोई ज़हन में नहीं आ रहा. हमने कहा चलो टेंडर जैसे बनाना है हमने, और मुस्लिम्स के लिए तो मिंडर रख लेते हैं. That's how it literally started as a joke. और फिर हमने ट्विटर पे डाला, it went viral. मतलब पहले दिन ही हमारे को पता नहीं 500 साइनअप्स आ गए थे. Oh my God, there's a Tinder for Muslims, ये वो यूएस में तो वायरल हो गया था. और बस उसके बाद मतलब ऑर्गेनिक साइनअप्स ही बढ़ते रहे. हमें 2-3 साल बाद जाके हमने एड्स और प्रॉपर मार्केटिंग स्टार्ट की थी. तब तक इट वाज ऑल ऑर्गेनिक. अच्छा अदील, उसके बाद मेरा क्वेश्चन सलाम्स के बारे में ही है कि यूएस से फिर आप ग्लोबली किस तरह एक्सपैंड हुए? वो रिलक्टेंट डिसीजन था आपको? यूएस जब आप ग्लोबली एक्सपैंड करते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स के लिए डिफरेंट तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है, या एक प्लानिंग ही सारे रीजन्स के लिए वो चलती है? अच्छा, इसमें यार एक चीज हमने नोट किया ना, वो ये है कि एक कोई भी यूएस बेस्ड कंपनी जब होती है ना, या यूएस ब्रांड होता है कोई भी, तो वो फॉर सम रीजन इंटरनेशनली उसकी ऑलरेडी एक्सेप्टेंस बढ़ होती है. चाहे वो सिर्फ मुस्लिम्स का ब्रांड हो, चाहे वो फेसबुक की तरह की कंपनी हो, या मैकडोनल्ड्स हो फॉर एग्जांपल. तो वो यूएस ने एक ऐसा अपना, मतलब यूएस का पर्सोना है कि वो ऑलरेडी ना लोग रेडी होते हैं कि ये हमारे पास कब आएगा. फेसबुक के केस में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, यही हुआ था. और मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह के केस में भी यही होता है. तो क्योंकि मिंडर जो है वो यूएस मुस्लिम पॉपुलेशन में फुली रीच कर गया था. मतलब इधर यूएस में 2016-17 में आपको ऐसा 18 to 30 years old की एज रेंज में कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसको ना पता हो कि मिंडर क्या है. वो मोस्ट लाइकली उनकी प्रोफाइल उस वक्त तक क्रिएटेड थी, क्योंकि हम लोगों के 1 मिलियन यूजर्स तो तभी हो गए थे. तो अब जब वो वर्ड ऑफ माउथ फैलता था, वो लोग अपने कजन्स को या कहीं और बताते थे कि हम तो इधर ये ऐप यूज करते हैं. फिर शादियां होने लग गई काफी सारी. तो वो शादियां जब होती थी तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ इतना फैल चुका था कि हम जिस ऐप स्टोर में जो कंट्री एनेबल करते थे, उसी दिन वहां से साइन अप्स आना शुरू हो जाते थे, क्योंकि पीपल वर रेडी फॉर इट. तो हमें मार्केटिंग पे डॉलर्स लगाने ही नहीं पड़े शुरू में. वो हमने काफी बाद में जाके स्टार्ट किया, जब थोड़ा कंपटीशन आया और इस तरह से हुआ. तो ये था उसका बेसिकली. अच्छा, अब आपकी इंटरनेशनल जो मार्केट है, यूएस के अलावा बिग कंट्रीज कौन सी हैं जहां पर आपका यूजेज ज्यादा है, या जहां पर यू थिंक कि इसकी अडॉप्शन ज्यादा है, और उसमें आपने क्या लर्निंग पॉइंट सीखा है? उसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या थे आपके? यार हमारा यूएस तो सबसे बड़ा, ऑब्वियसली कंट्री वाइज देखें तो यूएस सबसे बड़ा है. सिटी वाइज देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. लंदन इज द बिगेस्ट सिटी. सबसे ज्यादा यूजेज हमारी लंदन में आते हैं, क्योंकि लंदन में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन एक तो बहुत ज्यादा है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है. मतलब लंदन इज ऑलमोस्ट अ मुस्लिम सिटी है बेसिकली ऑलमोस्ट. तो उधर जो है काफी यूजेज है हमारा. सेकंड पे न्यूयॉर्क है, थर्ड पे टोरंटो है, मतलब सिटीज में. लेकिन कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1, यूके नंबर 2, कनाडा, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क. ये मेन हब्स ये हैं बेसिकली. Acha, interestingly, Adil, I think your competitor, one of your bigger competitor is Muzmatch, and that is probably, I believe, also run by Pakistanis. So, is it fair to say कि Muslim world में tech में पाकिस्तान को की leadership position है? क्योंकि Muslim world की बहुत सी product को somehow एक आधा co-founder जो होता है वो पाकिस्तानी होता है. Is it fair to say कि Muslim world की tech में Pakistanis या second में Egyptians नजर आते हैं? So do you have something to say in that space कि Muslims की apps जो होती हैं उसमें कौन leadership लेके जाता है? हाँ, that's interesting. नहीं, पाकिस्तानियों की डेफिनेटली मुस्लिम ऐप्स में लीडरशिप तो है, that is a fact. लेकिन now अब इस वक्त जो सलाम्स की टीम है उसमें पाकिस्तानियों की माइनॉरिटी हो चुकी हुई है. इस वक्त अरब्स ज्यादा है हमारी टीम में, मतलब इजिप्शियंस,
पैलेस्टाइन के लोग हैं, फिर क्या नाम है, अल्जीरिया। तो मतलब अब हमारा काफी डाइवर्स है, क्योंकि हम लोग मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन जब स्टार्ट किया था तो यस, आई वाज पाकिस्तानी, माय को-फाउंडर वाज ओरिजिनली फ्रॉम अफगानिस्तान बट बोर्न एंड रेज्ड इन द यूएस। अच्छा, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर। मेरे काफी फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, एंड आई एम सीइंग विद एवरी पासिंग ईयर ना, शादी करना और दिस इज बिकमिंग अ लॉट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि एजुकेशन बढ़ती जा रही है बोथ जेंडर्स की, और लाइफ सेगमेंटेड होती जा रही है। आप यू आर नॉट गोइंग आउट एज ऑफ्टन, उसके अलावा आपकी चॉइसेस में भी स्पेसिफिक होती जा रही हैं, ठीक है ना। सो ये एक क्राइसिस है पाकिस्तान में। How are you going to solve this crisis in Pakistan in a meaningful way, जहां पर लोग कहें कि यार बिल्कुल ये जो रिश्ता आंटियां हैं, ये जो बाकी हमारा एक एक्सप्लॉइटेटिव कल्चर है, आपको पता है कि हमारा एक बड़ा एक बड़ा बुरा कल्चर है कि वो रिश्ते देखने आते हैं लोग, और वो बहुत ज्यादा, स्पेशली माय फीमेल फ्रेंड्स, दे टॉक अबाउट इट कि ये बड़ा क्रिंज वर्दी है कि लोग आ रहे हैं आपको शॉपिंग करने के लिए, आपको देखने आ रहे हैं। सो डू यू हैव लाइक अ प्लान, और डू यू थिंक कि ये प्रॉब्लम कोई ऐप सॉल्व कर सकती है पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान में इसको सिर्फ आप उसको जो वेस्ट में आइडिया है उस तरह तो नहीं देख सकते ना, हमारी कल्चरल नॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने कंसिडरेशन में रखना है, प्रॉब्ली पेरेंट्स को भी ऑन बोर्ड। इस प्रॉब्लम को अगर पाकिस्तान में आप सॉल्व करते हैं, दैट वुड बी अ बिग कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान, इन माय ओपिनियन। या नो, दैट्स अ, बल्कि बड़ा टाइमली ये चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। कल आई वाज समबडी, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली सेंट मी आजाद चाय वाला का वो एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है। Secondwife.com, sir. Secondwife.com, and Yes. it's existed since the last, I think, 4ish years ना, पता नहीं इसको I know. publicity अब मिली है इसी वीक में। नहीं, I know, but that's funny, yeah. I mean, it's funny. Nobody uses it. अभी तक तो मैंने उसका, I have yet to meet a user जो उसका हो. But yeah, I think it's more viral than actual usage based product. लेकिन हाँ, मतलब ये तो खैर jokes aside, पाकिस्तान में obviously the app हमने as it is to try कर लिया हुआ है already पिछले कई सालों में। तो while it does work in hubs like Karachi and Lahore, somewhat Islamabad, मतलब ये 3 hubs से बाहर, लेकिन अगर आप जाए ना तो पाकिस्तान and rest of Middle East is pretty conservative. तो उसमें अब चीजें करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ तो हम प्रोडक्ट साइड पे चीजें करते हैं, जैसे ऐप में हमने फीचर डाला है कि जो खवातीन हैं वो अगर कंफर्टेबल नहीं है या ऑब्वियसली सोशल टैबूज हैं, तो वो अपना फेस ब्लर कर सकती हैं जब तक उनका किसी के साथ मैच ना हो जाए, बात ना हो जाए, एंड शी चूजेस टू शो हर फेस। तो ये हमें यूएस में ये फीचर्स अवेलेबल, हमने खुद नहीं रखे हुए क्योंकि इट्स नॉट नीडेड हियर, द पॉपुलेशन इज प्रीटी प्रोग्रेसिव। लेकिन मिडिल ईस्ट में ऑब्वियसली कंजर्वेटिव पॉपुलेशन है ज्यादा, तो हमें वहाँ इस तरह के फीचर्स रखने पड़े। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। लेकिन फिर दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या मेजर पॉपुलेशन एप्स यूज करने के लिए रेडी भी है कि नहीं, इन चीजों के लिए, शादी के लिए फॉर एग्जांपल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना सोशल मीडिया ने ओवरऑल पूरा मिडिल ईस्ट को काफी प्रोग्रेसिव कर दिया, क्योंकि आज से आप 10 साल पहले जाओ तो आपको यूएस का इन्फ्लुएंस आता था सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज से या उससे। लेकिन अब मैं हैरान होता हूँ, मेरे जो अपने छोटे कजन्स हैं, टीनेजर कजन्स जो पाकिस्तान में हैं, they know more about Kim Kardashian or what's happening in Hollywood than I do sitting here in California. तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत रैपिड हो गया सोशल मीडिया से। तो आई थिंक ओवरऑल ना सारे कंट्रीज ही दुनिया भर के वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये मार्केट ऑब्वियसली आगे आगे ये बढ़ेगी मार्केट, लेकिन कुछ हमें लोकल चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग इंटरनली जोक करते हैं कि शायद हम पाकिस्तान में एक कॉल सेंटर शुरू कर लें जो कि एक मैस स्केल पे रिश्ता आंटी का कॉन्सेप्ट हो, कि बेसिकली आप कॉल करें, आप बताएं कि जी मेरा दिस इज माय प्रोफाइल एंड आई वांट टू गेट मैरिड, एंड देन द कॉल सेंटर पर्सन रीच। मतलब शायद हमें थोड़ा सा मैनुअल वर्क बीच में इन्वॉल्व करना पड़े, बट दिस इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अस राइट नाउ, बिकॉज रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो सकता। पाकिस्तान इज, हमारे यूजेज में पाकिस्तान ऑलमोस्ट 5वें नंबर पे आता है, बट रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो वो शायद 10वें नंबर पे है। मतलब इट्स नॉट इवन in on our radar right now. इंडिया का भी सेम स्टोरी। तो ये है सिचुएशन। बाय द वे, आपने वो नेटफ्लिक्स में इंडियन मैच मेकिंग सीरीज देखी है?
I Yeah. found it very interesting, you know, it or was that really good. got me thinking कि अच्छा यार हमारा culture में क्या चीजें हैं. खैर, anyways, let's talk about Unlayer and other things. मेरे ख्याल में लोगों के काफी questions और भी थे. समिया की काफी questions थे, and she's been awfully quiet today. समिया, आपके questions हैं तो you can ask please. And मुजम्मिल के भी I'm sure काफी questions होंगे. नो जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं जैसे लोगों के आप पूछे जा चुके हैं. आप थोड़ा सा अपने एग्जिट्स के बारे में बताएं जो आपने आई थिंक यू हैव हैड some successful exits. So वो like how did you go about having those interest from such companies or such you know investors जो कि आपने मतलब like how did they approach you और फिर वो valuations वगैरह वो procedure वगैरह थोड़ा बताएं. अच्छा वो I've had one exit and that was in 2010 when basically it was a side project. It was called contactme.com. वो personal CRM की space में था और वो इस तरह से था कि आप बेसिकली एक फॉर्म मेकर टूल था जिसमें आप अगर आपने अपने वेबसाइट पे कोई फॉर्म डालना है तो आप उस पे फॉर्म वगैरह बना सकते थे और फिर आप अपनी वेबसाइट पे उसको डाल सकते थे. एक विजेट आ जाती थी, कॉन्टैक्ट का बटन आ जाता था. तो वो हुआ इस तरह से था कि इधर यूएस में एक कंपनी है webs.com. वो उनका webs.com का सीईओ जो है अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर कर रहा था. उस पे आप वेबसाइट बना सकते हैं webs.com पे. तो ही हैपन टू रन इनटू अ साइट जो हमारा कॉन्टैक्ट का बटन यूज कर रही थी. तो उसने वो कॉन्टैक्ट का बटन क्लिक किया, नीचे लिखा हुआ था पावर्ड बाय विजिटर कॉन्टैक्ट. उस वक्त हमारा नाम विजिटर कॉन्टैक्ट था. तो दैट्स हाउ he clicked that link. हमारी वेबसाइट पे आया और he really liked the product. उसको काफी पसंद आया वो. तो उसने फिर बस he reached out to me and he was like, we want to acquire you, would you be interested to join us? And he acquired my company and हमारी टीम को यूएस बुला लिया था उसने. तब इस तरह से हुआ था. वैल्यूएशंस वगैरह का उस वक्त हम लोगों का रेवेन्यू जो है वो काफी मतलब it wasn't too much. तो वो वैल्यूएशंस वाले प्रोसेस से गुजरे ही नहीं. उन्होंने बस हमें लंप सम ऑफर कर दिया. It was more of a acqui-hire basically. Acqui-hire एक टर्म होती है कि you acquire a company just to get the talent, just to hire the team behind it. तो वो उन्होंने बेसिकली हमारी टीम को एक्वायर करने के लिए they acquired the product. Okay, good, interesting. जी मुजम्मिल, आपके क्वेश्चन हैं. क़यास, फाइज, बिस्मिल रब्बी, anyone else? But बाकी what are you guys working on? Like इधर सारे क्या अपनी are they trying to build apps to become software developers or are you guys trying to make apps to start your own businesses? I think अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ. इसी से रिलेटेड है. Like what would you advise us? For example, अगर हमारे पास एक आइडिया है उसको मार्केटेबल या उसका बिजनेस पोटेंशियल असेस करना वो क्या like we have idea तो I think सभी के पास है. We can make a app but how will we assess कि ये कोई successful venture भी बन सकता है कि नहीं बन सकता and at some stage if we are able to you know find a buyer for it or not. So वो कितनी लंबी साइकिल होती है या उसकी क्या क्या मैट्रिसेस होते हैं जो हमें मेजर करने पड़ेंगे या हमारी जर्नी क्या होनी चाहिए बेसिकली. That's a great question. अच्छा इसमें अब मैटर करता है कि आपका गोल क्या है. मतलब आप ऐप डेवलपमेंट एक कैरियर बनाने के लिए सीख रहे हैं which is also a great option. आजकल ऐप डेवलपर्स are making a lot of money just by building apps for other people. ठीक है, like projects लेके या jobs करके. या आपका गोल आप एंटरप्रेन्योरियल हो और आपका गोल है कि मैं अपने ऐप आइडिया से बिजनेस बनाऊं. दो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस हैं. स्किल सेट शायद बीच में सेम होगा लेकिन बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस हैं और कोई अच्छी या बुरी नहीं है. दोनों लोग some people are well suited for one, other people are well suited for second. अच्छा जो आपका लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना कि अगर आपके पास एक ऐप आइडिया आप उसे बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे असेस करें कि क्या ये आइडिया वर्थ इट भी है कि नहीं है. अच्छा इसमें एक तो नंबर वन मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि बस आप मार्केट में चले जाएं या कर लें. ऐसे काफी टाइम और प्रैक्टिस लगता है. मेरे जो 3 या 4 स्टार्टअप्स हिट हुए हैं उससे पहले 10 फेल भी हुए हैं. ठीक है, और वो मेरी उस पे वेबसाइट पे भी लिखे हुए हैं सारे. तो और वो फिर फेल हो के आपको आपके अंदर ना एक स्किल डेवलप हो जाता है. इट्स लाइक अ मसल कि आप बेहतर इवैल्यूएट कर सकते हो आइडियाज को डिफरेंट वेरिएबल्स पे कि ये आइडिया
में कितना दम है। ये बेसिकली ये काफी प्रैक्टिस इसके पीछे लगती है, लेकिन इसके कुछ तरीके होते हैं जो आसान आप कर सकते हो। अगर आपने वो बुक पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो आई वुड हाईली रिकमेंड लीन स्टार्टअप। उसमें उन्होंने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का बताया कि आप अक्सर डेवलपर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो एक ऐप लेट से आप बना रहे हैं ना, तो आप कहते हैं कि मैं इसमें ये फीचर डाल दूं तो हिट हो जाएगा, ये फीचर डाल दूं, और वो फिर नेवर एंडिंग लिस्ट होती है। मतलब वो फीचर्स कभी भी नहीं खत्म होते। फीचर्स तो आते रहेंगे आपके ज़हन में आइडियाज, क्योंकि ऐप बड़ी होती जाएगी। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक मतलब इतनी बड़ी होके खत्म भी हो रही है अब, लेकिन फिर भी ऐप में चेंजेस आते रहते हैं, फीचर्स भी आते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। तो एमवीपी कहता है कि आपने अपने आइडिया को टेस्ट करने के लिए ना एक मिनिमम वायबल सी चीज लॉक कर देनी है, और वो आपने चढ़ा देना है और ऐप स्टोर में डाल देना है, और फिर ट्राई एडवर्टाइज करके ट्राई करना है कि अर्ली यूजर्स कैसा यूज कर रहे हैं उसको। अगर उनको वैल्यू नजर आ रही होगी तो वो आपको वहीं से पता चल जाएगा। अगर नहीं आ रही होगी तो ऑब्वियसली आपको वो भी पता चल जाएगा। फिर आप या तो फिर उसके आगे भी 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं, या तो आप पिवट करते हैं कि बिजनेस को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं, या फिर आप शट डाउन कर देते हैं और नए नए नेक्स्ट आइडिया पे मूव कर जाते हैं। मेरा तो बल्कि मैं आपको मैं आपको हमने बड़ा मजे एग्जैक्टली का यही एक मजे का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं इधर यूएस मूव हुआ था तो इतने फेलियर्स मेरे हो चुके हुए थे कि मेरी जो कंपनी थी, जो लीगल नेम था उस कंपनी का नाम था 6 टेक्स LLC। और इसके पीछे स्टोरी ये थी कि ये हमारा 6 टेक्स, ये हमारी 6ठी टेक थी, पीछे 5 फेल हो चुकी थी। हमने कहा अब इसका 6ठी का नाम क्या रखें, हमने 6 टेक्स ही रख दिया। वैसे एग्जैक्टली by हमने यही प्रोसेस पढ़ा है इस कोर्स में, और आई uh, थिंक यही हमें जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बेसिकली इसी के ऊपर था कि आदिल, MVP बनाना है। हमने एक दो क्लासेस ना एमवीपी और लीन स्टार्टअप के ऊपर डिस्कशन पे गुजारी थी, बिकॉज आई लाइक यू सेड आई फेल्ट इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि स्टूडेंट्स ना एक क्योटिक थिंकिंग में चले गए थे कि क्या क्या फीचर्स डाले। दे वर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ के सारा यूनिवर्स भर के जो आइडियाज जब इन्होंने सबमिट करवाए ना कि हम ये एप्स बनाएंगे, तो उसमें मैं आई फेल्ट सम स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू ऐड ऑल द फीचर्स दैट दे कुड थिंक ऑफ। तो मैंने फिर एमवीपी वी टॉक्ड अबाउट एमवीपी, एंड इनका जो लास्ट क्विज था उसमें like 5-10% of the questions were about MVP and lean startup, and they were even tested on that as well. So I'm glad you know coming from you definitely एक reinforcement है for them यार, क्योंकि MVP lean startup ने एक thinking model दिया कि अच्छा आप यहाँ से start कर सकते हो, start from small and then validate that and improve it, like you said, उसको validation जिसको टेक्निकली हम कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो कि लोग उसको पे करने के लिए तैयार हैं। लाइक यू सेड, यू ब्यूटीफुली सेड दैट कि यार सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि लोग आपके अपने जेब से डॉलर निकालें और आपको दें, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो वो तो एक बड़ी मजे की चीज है। एमवीपी के बाद अगर आपने वो प्रूव कर लिया, यू हैव रीजनेबल सॉर्ट ऑफ कि लोग उसको यूज कर रहे हैं। और मार्केटिंग की आपने बात की कि आपने कहा कि एमवीपी डालें, उसको मार्केट करें। अगर मार्केटिंग का बजट नहीं है इन द बिगिनिंग तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि आप देखो, या आप पैसा लगा सकते हो एक बिजनेस चलाने के लिए, या आप टाइम और एनर्जी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों से सिमिलर रिजल्ट्स आ सकते हैं अर्ली यूजर्स लाने के लिए, फिर स्केलिंग बाद में हो जाती है। तो अगर आप पैसे नहीं लगाना चाह रहे, मार्केटिंग का बजट नहीं है, तो फिर आपको टाइम और एनर्जी लगाना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? आपको डिफरेंट फोरम्स पे जाना पड़ेगा, आपको फेसबुक ग्रुप्स पे जाना पड़ेगा, आपको मतलब वो अनोइंग पर्सन बनना पड़ेगा जिससे लोग चिढ़ते हैं, लेकिन आपको वो बनना पड़ेगा। आपको जगह जगह अपने ऐप की पोस्ट लगानी पड़ेगी, आपको कोरा पे लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे, आपको रेडिट पे जाना पड़ेगा, थ्रेड्स, जो कि मैंने सारा कुछ ही किया हुआ है पहले, और इससे रिजल्ट्स आते हैं। आप अर्ली अपने 100, 200, 1000 यूजर्स इस तरह से टाइम लगा के अचीव कर सकते हैं। और जब 100, 200, 1000 यूजर्स आ चुके होते हैं ना, तब तक आपके पास इनफ डेटा आ गया होता है कि आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा चैनल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, तो मैं क्या इस पे पैसे भी लगा सकता हूँ कि नहीं। तो वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन पहले 100, 10, 1000 यूजर्स के लिए तो आपको ये करना पड़े। इस पे मैं आपको बड़ा मजे का एक आर्टिकल बताता हूँ। अब आप लोग गूगल पे सर्च करना, पॉल ग्राम का है, जो वाई कॉम्बिनेटर का फाउंडर है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। मैं आपको इस पे चैट पे लिंक भी भेज रहा हूँ इसका। ये आप लोग सारे ना जरूर इस चीज को पढ़ना। और उसमें यही क्वेश्चन जो अभी जैसे समिया ने पूछा था ना, वो इसमें मेंशन किया हुआ है पॉल ग्राम ने, कि शुरू में आपको स्टार्टअप के अर्ली यूजर्स में आपको वो चीजें करनी होती हैं जो स्केल नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, एज अ CEO आप खुद एक एक बंदे को कॉल कर रहे हो, या मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी आपके स्टार्टअप के लिए यूजफुल चीजें आपको वो सब करनी पड़ती हैं।
इवेंचुअली जब आप फिगर आउट कर लेते हो पूरा, फिर आप स्केल करते हो। ये एक क्वेश्चन आया है जिसमें रबी की तरफ से मैं पढ़ता हूँ उसको। क्वेश्चन ये है कि आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू डील विद फेलियर, पर्सनल नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अगर करियर में स्टम्बल कर गए हो 1-2 साल के लिए, 3 साल हो गए, मेरे केस में 5 साल भी लग सकते हैं आपको, आपने कोई फेलियर डायरेक्शन में चले गए हो और आपने अपने आप को रीबिल्ड करना है, दैट्स वन। एंड शी सेज, एंड इन करियर एंड जॉब, हाउ टू कवर स्टडी एंड करियर गैप्स इन पॉजिटिव वे, लाइक प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से उन्होंने उठाया मेरे ख्याल में। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसका अक्सर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आंसर देते हैं ना, वो तो ये है कि कोई मसला नहीं, फेलियर्स तो होते रहते हैं और आप वेट करें। सारे लोग यही आपको कहते हैं। अब ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आप आप मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देख के आप अपना लाइफ का पैटर्न ही कर सकते हैं। फिर लोगों के मतलब और भी चीजें होती हैं कि वो कैरियर, कुछ लोग इस स्टेज पे होते हैं कैरियर के कि उनको इनकम जनरेट करना ज्यादा जरूरी होता है और बाद में ये चीजें फिक्र। तो हर एक के लिए इसका आंसर डिफरेंट है। लेकिन नॉर्मली मैं सबको ये कहता हूँ कि जैसे मैंने खुद भी ये प्रैक्टिस किया हुआ है कि जब मैंने अपना ये जैसे मेल मंथ स्टार्ट किया था, आई वाज मैरिड, आई हैड अ डॉटर। तो मैं एकदम से सारी कश्तियां जला के मैं ये नहीं कह सकता था मैं बस स्टार्टअप करने जा रहा हूँ जी। तो मैंने वो बेसिकली आई हैड अ जॉब, वो पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जॉब थी। उसके बाद घर आके मैं स्टार्टअप पे काम करता था। तो आई यूज 18 घंटे का मतलब मेरा दिन हो जाता था। बट मैंने ये नहीं किया कि जॉब छोड़ दी। जब तक स्टार्टअप ने उतनी इनकम जनरेट नहीं करना शुरू की जिससे मेरा लाइवलीहुड हो सके, तब तक मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी। और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता। मतलब आप वो बड़ा एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी कश्तियां जला दी, लेकिन अगर उसके बाद मतलब आपका लेट्स से योर थिंग डजंट वर्क आउट, तो यू नीड लाइवलीहुड, यू नीड टू सर्वाइव। तो बेस्ट कोर्स ये होता है कि अगर आप इफ यू गाइस आर डूइंग अ जॉब या कोई आपका अर्निंग ऑलरेडी है और आप ऐप साथ साथ करना चाह रहे हैं, तो अपने फ्री टाइम में उसको ट्राई करते रहें, फ्री टाइम में एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। इवेंचुअली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट निशाने पे लग जाएगा और फिर आप उसको ग्रो करके जॉब छोड़ सकते हो। Unless you are like 19-year-olds or 20-year-old के आप कश्तियां जला भी दो तो दोबारा बन जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो अच्छा फिर कर अदील, सकते उसके हो आप। बारे में उसके अच्छा ठीक है, हाँ मेरे ख्याल में दैट्स अ गुड राउट कि आप उसको वंस यू आर कन्विंस्ड कि दिस आइडिया कैन वर्क, देन यू कैन टेक एन एंजल इन्वेस्टमेंट एज वेल। अब तो ये बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड आइडिया है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको लोग मिल जाते हैं जिनके पास पैसे जमा हुए होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये लो इतने पैसे तुम थोड़े से ले लो, अगर कामयाब हुआ तो आई स्टैंड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन डेफिनेटली किसी के पैसे लेने से पहले यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि ये कुछ मार्केट बेस्ड रिसर्च कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा आदिल, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आप 3 स्टार्टअप्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये लर्न किया है कि मैंने अपनी कंपनी एप्स के साथ जब मैंने कोर्स पढ़ाना शुरू किया ना, तो अर्ली मंथ वीक्स में, एंड यू आर अ फर्स्ट हैंड विटनेस टू दिस, के मुझे सॉर्ट ऑफ एंजाइटी और सॉर्ट ऑफ एक मैनेजिंग जो डिफरेंट चीजों को मैनेज करने में मुझे बहुत सारे इश्यूज हुए। आई एम नॉट सेइंग सबको होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप 3 स्टार्टर्स मैनेज कर रहे हैं, यू हैव अ फैमिली माशाल्लाह से, यू हैव अदर इंटरेस्ट एज वेल, आप इस तरह की टॉक्स के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज दैट प्रेशर कि कल मैंने इतनी चीजें करनी है, इतनी चीजें स्केड्यूल हैं, और ये इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? और इसके बारे में आप क्या सजेशन दे सकते हैं? क्योंकि काफी लोग अब अपनी जॉब और करियर के और फैमिली के अलावा हमारी ऐप्स पे भी काम करेंगे, उनके लिए बड़ी अच्छी एडवाइस होगी। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं जिस तरह से मैं मैनेज करता हूँ। ये एक तो ये कि मैंने जैसे अब जैसे सलाम्स है, वो उस पे मेरा पर्सनली कोई मतलब डे टू डे रोल नहीं होता। वो हम लोगों ने लोग हायर करके डेलीगेट कर दिया। इवन सीईओ, वी ब्रॉट इन द सीईओ फेसबुक से। तो वो टीम ऑटो पायलट पे चल रही है। जब कोई मेरा जरूरत पड़ती है तो मैं ऑब्वियसली जंप इन कर जाता हूँ। जब कोई टेक्निकल चीज ब्रेक डाउन हो जाए या कोई आर्किटेक्चरल इश्यूज हो, तो तब मैं आ जाता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं डे टू डे चीजें जो हैं वो मैं नहीं देख रहा, तो मेरा टाइम उधर से फ्री अप हो गया। लेकिन हाँ, बाकी दोनों कंपनीज में डे टू डे भी चला रहा हूँ। तो उसमें फिर तरीका ये होता है कि क्योंकि हम लोग वीसी फंडेड नहीं है ना, तो हम लोग अपने पेस पे एंजॉय करके चीजों को कर सकते हैं। अगर आप वीसी फंडेड हो तो आपके ऊपर एक तलवार लटक रही होती है, आपके ऊपर प्रेशर होता है। आपको हर महीने बोर्ड मीटिंग में आपको दिखाना है कि जी मैंने देखे इस महीने ये किया। तो उस केस में लाइफ जो है आपकी बहुत वो हो जाती है, मतलब
कुछ लोग उसमें थ्राइव करते हैं, कुछ लोग बहुत वो अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर है और वो उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से फिर मल्टीपल चीजें तो नहीं आप कर सकते। तो हम लोग अपने पेस पे ग्रो करते हैं जिसमें हम एंजॉय भी कर रहे हो और मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन रख सकें। That's good. That's good. Yeah, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा जी Sir, I have one last question. जी जी Sure. So that was about social media users. How do you plan like strategies for the future in case if social media users increases, then or maybe there is another new startup or something like that that takes more space in the market? How would you deal that? अच्छा, सोशल I believe you are referring to mail munch, मतलब email marketing versus social Sir. media. Yes, sir. Sure. अच्छा, सोशल मीडिया के यूजर्स, अभी देखो फेसबुक वाज द बिगेस्ट थ्रेट ईमेल मार्केटिंग को, और वो तो थ्रेट अब ऑलमोस्ट डिसमेंटल हो गई है, क्योंकि फेसबुक के यूजर्स तो डिक्लाइन हो रहे हैं, अब इस वक्त बढ़ नहीं रहे हैं। डिक्लाइन, फेसबुक इज अ डिक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म बाय द वे। यूएस में तो जो 15 टीनेजर्स हैं वो तो फेसबुक पे आ भी नहीं रहे हैं। तो फेसबुक इज अ डिक्लाइनिंग प्लेटफॉर्म, और फेसबुक इटसेल्फ हैज रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ ईमेल मार्केटिंग। अभी ट्विटर और फेसबुक दोनों ने, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, पेड न्यूज़लेटर स्टार्ट किए हैं। इस साल का 2021 का यूएस का हॉटेस्ट जो स्टार्टअप था वो सबस्टैक था। सबस्टैक इज अ पेड न्यूज़लेटर सर्विस, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज गोइंग बैक टू ईमेल, क्योंकि सोशल मीडिया में उन्होंने रियलाइज कर लिया कि इट्स फॉर अच्छा। और ऑन दी अदर हैंड पे जो इंस्टाग्राम है वो ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की तरफ चला गया है कि आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे होते हैं, या आपने एक अपना छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है प्राइवेट अकाउंट और आप उसमें शेयर कर रहे हैं। तो एक बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए इस वक्त तो सोशल मीडिया, मतलब अनलेस यू आर एन ई कॉमर्स बिजनेस जिसने फैशन ब्रांड है, कोई आपने कपड़े वगैरह बेचने हैं या एक्सेसरीज बेचने हैं, तो उसके लिए इंस्टाग्राम इज ग्रेट, आप विजुअल उसमें कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी बिजनेसेस के लिए ईमेल मार्केटिंग इस वक्त जो है वो प्राइमरी आरओआई ड्राइव करे, आरओआई एज इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ईमेल मार्केटिंग का यार है। हाँ, लेकिन अगर आपने जैसे कहा इन फ्यूचर कोई आता है तो उस टाइम पे फिर हम उसको इवैल्यूएट करके पिवट कर लेंगे। अगर कोई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आता है कि हमें लगता है कि यार ये तो सारा यूजर उस तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, तो हम पिवट कर लेंगे, फिर हम उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे एसएमएस मार्केटिंग एक मजे की चीज है, वो हम आजकल उस पे, वो मेल मंच एसएमएस मार्केटिंग के फीचर्स भी देता है। तो इस तरह से अगर कोई बाद में एक पॉइंट पे लग रहा था चैट बॉट्स जो है, मैसेंजर, फेसबुक ने मैसेंजर और व्हाट्सएप को इस तरह मार्केट किया था कि बिजनेसेस शायद उस पे ऑपरेट करना शुरू कर दें, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड भी डाई डाउन ही होता हुआ नजर आ रहा है, इतना ज्यादा वो टेक ऑफ नहीं किया। लेकिन आपको ऑब्वियसली, जैसे हमारा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते कि यू टर्न जो है उसमें तो बड़ा, वो तो एक इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही है, ये बेसिकली जेफ बेजोस का तो कोट है कि यू टर्न इज अ ग्रेट थिंग, कि वो अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि यू टर्न करने से आपका बिजनेस मतलब ऊपर चला जाएगा तो व्हाई नॉट। मतलब हो सकता है मैं आज से 5 साल बाद कह रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग बिल्कुल फजूल है और ये जो है ना ये करना चाहिए, हो सकता है, यू नेवर नो। हाँ, उसके बाद मार्केट चेंज हो जाएगी ना, आपकी बात वही ना। गलत नहीं होगी, बात झूठी नहीं होगी, वो मार्केट चेंज हो Exactly. जाएगी, उस वक्त ईमेल मार्केटिंग मेन टूल नहीं रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। सो ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हमारी क्लास के आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, व्हाट सजेशंस एंड गाइडेंस कैन यू गिव देम, और आगे फ्यूचर पाथ में का जो है, ऑब्वियसली इन स्टूडेंट्स ने मुझे भी वैसे नहीं बताया कि इनके आगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट डूइंग अ जॉब और स्टार्टअप्स, और मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बट अदर देन दैट व्हाट सजेशंस कैन यू गिव देम, व्हाट आर द स्पेसेस, किस तरह किन सेक्टर्स में यू थिंक इनकी अटेंशन की जरूरत है, फ्लटर की एप्स की बना सकते हैं, किन सेक्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी है, एंड जनरली अदर सजेशंस दैट यू वांट टू गिव टू दीस स्टूडेंट्स। या अच्छा, एक ना मैं एक सजेशन में अक्सर लोगों को देता हूँ और मैं खुद भी इस पे प्रैक्टिस करता हूँ, वो ये है कि आप बेसिकली 2021 है, ऐप स्टोर्स जो हैं वो फ्लड हो चुके हैं डिफरेंट ऐप से, ठीक है। अगर आप आप कहोगे ना कि जी मैं एक और सोशल नेटवर्क बना रहा हूँ, तो ठीक है, आप अपनी खुशी के लिए बना लो, लेकिन उसका एक मार्केट में सक्सेसफुल होना बहुत अनलाइकली सिनेरियो है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन हर एक को ये होती है कि आप अब ये करो कि आपने लेट्स से सोशल नेटवर्क ही बनाना है ना, आप एक नीश को पकड़ो, आप एक नीश के लिए बनाओ। जैसे हम लोगों ने अब जब हम लोगों ने मिंडर बनाई, अब सलाम्स, उस वक्त भी बहुत सारी मतलब टिंडर था, मैच था, ओके क्यूपिड था, देयर हंड्रेड्स ऑफ लिटरली दीज एप्स। हमने क्या किया, हमने एक टारगेटेड बनाई फॉर मुस्लिम्स,
ठीक है, एक नीश को पकड़ लिया, और वो नीशेस भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। हाँ, वो हो सकता है आपको मतलब फेसबुक लेवल की बड़ी ना हो, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा, आप अच्छा हेल्दी मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस आप एक नीश पे खड़ा कर सकते हो। तो आप कोई भी, अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप कोई भी बड़ा आइडिया, अगर आपने अपना बिजनेस बनाना है ना, बड़ा आइडिया कोई भी पकड़ो और सोचो कि उसको मैं अगर इस छोटी नीश के लिए बनाऊं तो क्या वायबिलिटी बनती है। जैसे एक बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है, बल्कि आमिर आपने शायद, पता नहीं, मैंने कहीं आपका स्टेटस पढ़ा था, उबर फॉर एक्स का बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, कि जी मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ, वो उबर फॉर एक्स है, या वो डोर डैश फॉर एक्स है। तो ये मजाक में मतलब हम उड़ा देते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। कई कितने कितने बिजनेसेस खड़े हुए हैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ये आई थिंक ये वाली स्ट्रेटेजी बेस्ट है कि आप कोई भी बड़े आइडिया को पकड़ो और उसको एक नीश मार्केट पे अप्लाई करके देखो कि क्या दिस फॉर दिस चलेगा कि नहीं। अगर आपको लगे कि चलेगा तो वो बना लो। दैट्स अ ग्रेट वे टू। और उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता होता है कि ये जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो वो ऑडियंस कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब जैसे हमने अगर मुस्लिम्स के लिए बनाया तो हमें पता था कि अच्छा मुस्लिम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ हमने मार्केट करना है। अगर आप जैसे लेट से, वैसे ही मैं मतलब कह रहा हूँ, फोटोग्राफर्स के लिए कुछ बना रहे हो तो आपको पता होगा कि फोटोग्राफर्स इस फोरम पे बैठते हैं, इस पे हमने मार्केट करना है। अब मेरा दोस्त जो है आमिर, यू नो हिम, जैन, उसने फिन क्विज बनाया हुआ है, फाइनेंस सीएफए एग्जाम प्रिपरेशन। इट्स अ ऐप जिसमें कोर्स बेचते हैं वो लोग। अब उनको एग्जैक्ट पता था कि फाइनेंस के स्टूडेंट जिन्होंने सीएफए करना है वो कहाँ बैठते हैं, उनको कोर्स बेचना है हमने, तो उस फॉरम पे जाके वो लोग मार्केट कर लेते हैं। वो आई बिलीव श्वाइजर या पता नहीं कौन सा फॉरम है जिसपे वो सारे बैठते हैं। तो इस तरह आप किसी नीश को पकड़ो, क्योंकि उसमें आप अगर जब नीश को पकड़ने आओगे ना तो आइडियाज आर अनलिमिटेड। लोगों ने बड़े बड़े तो सारे आइडियाज मतलब एटलीस्ट अपेरेंटली कर लिए हुए हैं, सोशल नेटवर्क भी काफी सारे आ गए हैं, लेकिन नीशेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी भी हर फील्ड में। अब मेरा दोस्त लाहौर में, वो उसने पॉइंट ऑफ सेल बनाया हुआ है। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, देयर इज अ कंपनी इन लाहौर, रिपेयर डेस्क। वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाते हैं, और वो किन के लिए बनाते हैं? सिर्फ रिपेयर शॉप्स के लिए। यूएस में जितनी रिपेयर शॉप्स हैं, और उनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 30% है। 30% रिपेयर शॉप्स इन द यूएस यूज रिपेयर डेस्क फ्रॉम पाकिस्तान। तो इतनी छोटी नीश के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना के उसने इतनी बड़ी कंपनी बना लिया। दे आई थिंक दे आर एट 100 एम्प्लॉइज राइट नाउ इन लाहौर। तो नीशेस में बहुत पोटेंशियल है। सही सही सही। मैंने भी जैसे ना मेरी रिसेंट जो मैंने एक ऐप, मेरी MVP उनका उसका वैलिडेट हुआ, वो CSS की तैयारी की ऐप थी। इतनी बड़ी मार्केट, आई मीन अपेरेंटली 20 से 30 हजार लोग ये एग्जाम देते हैं, लेकिन उनके लिए डिजिटल सोल्यूशन किसी ने भी कटिंग एज नहीं बनाया हुआ था। एंड द मोमेंट आई मेड इट, आई मेड अ सीरियस, गेव इट अ सीरियस एफर्ट, थोड़ी सी R&D की, एंड विद इन फ्यू मंथ्स आई वाज द मार्केट लीडर इन डिजिटल स्पेस। ट्रेडिशनली तो अकेडमीज हैं जिनके जहां आप जाते हो पढ़ने के लिए, किताबें खरीदते हो, वो चीजें हैं, बट डिजिटली कन्वीनियंस ऑफ एन ऐप जो है ना, इट्स अनबीटेबल। अगर उसके ऊपर तो आई एग्री विद यू, पाकिस्तान में तो निशेस बल्कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यूएस में तो शायद थोड़ी उससे भी कम हो। पाकिस्तान में तो सीरियस ऐप डेवलपर्स एज एन एंटरप्रेन्योर या अपनी ऐप के ऊपर काम करने वाले तो मेरे ख्याल में हंड्रेड्स में भी नहीं होंगे, 100 से ज्यादा भी नहीं। बिल्कुल। अब आपने वो कल परसों देखा हो शायद, एक स्टार्टअप है पाकिस्तान में जिन्होंने कुछ आई थिंक $1 मिलियन या पता नहीं अ फ्यू मिलियन डॉलर्स रेस किए हैं। उनका इन्वेस्टमेंट पिच मेरे पास भी आई थी angel.co पे, मेरा एक फ्रेंड है उसके थ्रू। क्रेडिट बुक नाम है उनका, और वो इंडिया का स्टार्टअप है खाता बुक। उसको बेसिकली उस मॉडल को उन्होंने कॉपी किया। वो है क्या कि जो छोटे छोटे पाकिस्तान में स्टोर्स हैं, इंडिया में तो इट्स ऑलरेडी अ वेरी वायबल बिजनेस। अच्छा, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है बाय द वे। इंडिया में जो चीजें ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना, वो आइडियाज क्योंकि डायनामिक्स मार्केट के बिल्कुल सेम है, तो और इंडिया ऑब्वियसली इकोनॉमी वाइज इट्स अहेड ऑफ पाकिस्तान, तो उधर वो चीजें थोड़ी पहले आ जाती हैं, तो आप उधर से भी आइडियाज काफी ले सकते हो। तो क्रेडिट बुक ने खाता बुक को बेसिकली कॉपी, मतलब कॉपी तो नहीं, इंस्पायर्ड है। वो क्या है जी, दुकानदार और जितने जो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते, उनके लिए मोबाइल ऐप है, बेसिक अकाउंटिंग सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करने के लिए। और इंडिया में इस वक्त आई थिंक, पता नहीं वो जो है खाता बुक है, वो तो $70 मिलियन रेस कर चुका है। उनका तो रेवेन्यू भी इस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो क्रेडिट बुक ने वही मॉडल अब इधर लेके आए हैं, और आई एम 100% श्योर के इट विल वर्क आउट हियर एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान की डायनामिक्स में वाकई काफी सारे आपके जो दुकानदार या स्टोर्स हैं, वो कोई ना पॉइंट ऑफ सेल यूज करते हैं, ना कोई अकाउंटिंग। अदील, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये खाता बुक का आइडिया ना मेरे माइंड में इंडिपेंडेंटली आया था तकरीबन 3 हफ्ते पहले।
और मैंने अपने हमारी ऐप का जो क्लास का ग्रुप है ना, मैंने उसमें वॉइस मैसेज भी किया था। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि इंडिपेंडेंटली मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं ना अपनी लोकल जनरल स्टोर पे गया ना, तो उसने मुझे कहा कि ना आपने मेरे 550 रुपए देने हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं तो कभी किसी से उधार करता भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा यार हाँ मुझे याद आया मैंने देने हैं। तो मुझे कहता कि मैंने उसको पैसे दे दिए। फिर ना आई वाज वेरी क्यूरियस, मैं अपनी जो मेमोरी को मैं टेस्ट कर रहा था। मैंने कहा यार डू यू रिमेंबर मैंने क्या बाय किया था? मुझे इतना याद था कि मैंने कुछ बाय किया था। मैंने कहा डू यू रिमेंबर मैंने क्या बाय किया था? आई वाज जस्ट टेस्टिंग माय मेमोरी कि 1.5 महीने बाद मुझे उसने ना जब खाता बुक खोली ना, तो ही केप्ट ऑन ओपनिंग पेजेस। उसने खोल के ना 10 मिनट जब उसने लगा दिए ना, दैट मेरा वो ऐप डेवलपर माइंड उसी वक्त क्लिक किया कि यार इस तरह के तो पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ शॉप्स हैं और होलसेल भी, और इनको तो खाता बुक में इसको तो क्विकली सर्च करनी चाहिए थी। आमिर मुझे ही नोज मी वेरी वेल, ठीक है, हमारी लोकल शॉप है तो उसको मेरे घर का नंबर भी पता है, तो वो सर्च करता तो मुझे फौरन बता देता। 10 मिनट बाद मैंने उसे कहा ठीक है रहने दे, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि उसी के बाद मैंने फौरन वॉइस मैसेज अपनी ऐप में किया। एंड आई बिलीव इंडिपेंडेंटली मेरे माइंड में आइडिया आया था, लेकिन ये भी समटाइम्स होता है कि आपने कहीं पढ़ा होता है, आपको याद नहीं होता, वो माइंड में आपके कहीं बैठा होता है, और आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। सबकॉन्शियसली आप समझते हो कि आपका ओरिजिनल आइडिया है, लेकिन वो शायद कभी कभी आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं होता। लेकिन उस एक्सपीरियंस से मैंने ये आइडिया इनको कहा था, मैंने आई टोल्ड देम कि ये दिस विल बी अ $1 million आइडिया। एंड इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू नो, एंड वी हैव अ वेरी हेल्दी हैबिट, हम क्लास में बड़ी डिस्कशन करते हैं। सब स्टूडेंट्स ने कहा कि शायद ये मोनेटाइज नहीं होगा, एंड वी एंड 2-3 वीक्स बाद किसी ने उसके ऊपर $1 million रेस कर लिया। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं रूटीन बेसिस पे, अगर आप उस पर हम पे थोड़ा सा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सा उसको ट्राई करें, तो वो घूम फिर के वही आइडियाज होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आइडियाज के बारे में ना एक स्टीव जॉब्स का बड़ा मशहूर वो कोटेशन है कि आइडिया जब आपके जहन में आता है ना, इस तरह से बिजनेस आइडिया या ऐप आइडिया, तो वो एक जर्म की तरह होता है जिसको बड़ा इजीली आप डस्ट ऑफ भी कर सकते हो और वो खत्म हो जाएगा, या फिर आप उसको उसकी गहराई में जाके जाते जाओ और हो सकता है वो $1 million आइडिया हो और आप उसको कहो कि नहीं शुरू में ही आप उसे डस्ट ऑफ कर दो। तो आइडियाज को बड़ा इजी होता है ये डस्ट ऑफ करना, लेकिन कभी कभी वो फजूल सा आइडिया जो है वो बड़ा मतलब सोने की कान में हीरा निकल आता है। तो किसी भी आइडिया को बिल्कुल डस्ट ऑफ नहीं आई थिंक करना चाहिए। चलिए ठीक है अदील, वंडरफुल टू हैव यू। आई थिंक हम रैप अप करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यहाँ पे इफ्तारी 20 मिनट बाद होने वाली है, एंड वी ऑलरेडी हैव अ वंडरफुल टाइम। कांट थैंक यू इनफ अदील, यू बीन वंडरफुल सपोर्ट। एंड इकोसिस्टम में अदील जैसे लोग हो ना, एंड यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट हिम। अदील आप अपना कांटेक्ट नंबर इन्हें बता दें, एंड दिस इज अ ग्रेट हेल्प कि पीपल लाइक हिम आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको लाइफ में कभी जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सेल योर आइडिया, या यू आपको कुछ चीज इवेलुएट करनी है, कुछ ओपिनियन लेना है, एंड you can contact people like him, and I'm glad he's shared his personal email address adilr@gmail.com. ठीक है, feel free, you can reference this talk के course में, तो Adil will be very much helpful. तो ऐसे लोग इकोसिस्टम में बहुत थोड़े हैं। मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने अब 3-4 हो गए हैं जिनको आई फील के they are open to discussions, they give you time and all that. तो अगर कोई important questions हैं, we have 5 more minutes, we can go 5 more minutes अगर कोई important questions है, please. जी सर, I have a quick question. सर स्किल सेट पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दें प्लीज कि हमें कौन सा इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट के अलावा कौन सा स्किल सेट एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है और बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर। तो कौन सी चीज हमें करनी चाहिए कि वी कैन लाइक सक्सीड इन लाइक नॉन टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स एज वेल? यार एक तो उसमें बड़ा जरूरी, मतलब अब क्योंकि आप नॉन टेक स्किल सेट कह रहे हो तो उसमें बड़ा जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ जी सर। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा स्किल सेट है जो मैं बेसिकली इस वक्त जब मैं अब मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं ना, तो मैं टीचर से अक्सर यही पूछा होता हूँ कि आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं बच्चों को कि नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि आप किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर सको। ये बड़े कम लोगों में स्किल होता है क्योंकि आप हर चीज में आपके बायसेस होते हैं। अब जैसे मैं इधर कोई लेट्स से पीटीआई का सपोर्टर बैठा और मैं इमरान खान को कुछ कह दूं तो वो फौरन एकदम से वो कहेगा कि नहीं आपने कैसे कह दिया। या सेम फॉर मतलब नून लीग या इधर यूएस में भी डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन सेम। लेकिन बड़े कम लोग हैं जो पीटीआई के सपोर्टर होते हुए भी इमरान खान की बुराई भी सुनने को तैयार हो। कि ऑब्वियसली कोई बंदा क्रिटिकली हर चीज को क्रिटिकली आप एनालाइज तो कर सकते हो ना, हर एक में बुराइयां होती हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग हर चीज में, आपके बिजनेस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा।
आप किसी आइडिया के पीछे जाओगे ना, आप जैसे वो आई थिंक समिया ने पूछा था कि आइडिया को कैसे हम वैलिडेट करें, इस चीज में क्रिटिकल थिंकिंग आपका बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप बिल्कुल अपने बायसेस को साइड पे रखें। मुझे ये आइडिया पसंद है, मैं इससे इमोशनली अटैच्ड हूँ, ये सब चीजें साइड पे रखें, आप क्रिटिकली एनालाइज कर सको कि क्या ये आइडिया मुझे तो बहुत पसंद था, मैं तो मतलब इमोशनली अटैच था, मैंने इस पर टाइम भी लगा लिया, लेकिन क्या ये वाकई वायबल है भी कि नहीं। और फिर आप उसको एक जरा एक थर्ड पार्टी नजर से देखते हो कि ये चीज, तो क्रिटिकल थिंकिंग हर चीज में अप्लाई होती है। मेरा तो ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इस एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में, फेक न्यूज, अब अमेरिका इस वक्त फेक न्यूज से भरा पड़ा है, ठीक है। कोविड, ये कोरोना वायरस के सिलसिले में कितनी फेक न्यूज आई है, 5G से रिलेटेड कितनी फेक न्यूज है। तो इन सब चीजों को आप कैसे काउंटर कर सकते हो? एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिकली क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करना है। आपको इंटरनेट पे अगर एक आर्टिकल आया है तो दूसरा भी आर्टिकल होगा उसके काउंटर करने के लिए। मतलब एनीथिंग, इधर यूएस में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है जो अक्सर लोग यूज करते हैं, एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट इज नॉट ट्रू। और वो मैं मतलब मैं अपने पेरेंट्स को ही अक्सर वो भेजता रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे व्हाट्सएप पे चीजें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं विच आर ऑब्वियसली फेक। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आई थिंक आई वुड से कि नंबर 1 है मेरी लिस्ट में, तो स्किल एक्वायर करने के लिए। थैंक यू सर। श्योर। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग एक्वायर करने का तरीका क्या है? यार ये जी समिया आप कुछ कह रही थी? नो यही ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था। अच्छा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं बेसिकली अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि मैंने कैसे एक्वायर की, तो आई थिंक काफी टाइम लगता है। आपको चीजें जो बचपन से सिखाई गई होती है ना, उनको आपको अनलर्न करना पड़ता है पहले, ठीक है। आपको कुछ कन्वेंशन सिखाई गई है बचपन से कि जी ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, वो ऑब्वियसली सारी सही नहीं है। आपके पेरेंट्स ने भी कुछ चीजें सिखाई होंगी, वो सही नहीं होंगी, ठीक है। ट्रेडिशंस कुछ चीजें सिखा रहे होंगे, वो सही नहीं होंगी। तो आपको सबसे पहले कुछ ट्रेडिशंस को तोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी और एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, मेरे वालिदैन, मेरे परदादा, मेरे जनरेशन से चीज चली आ रही है, क्या वो सही है कि नहीं है। हो सकता है कुछ चीजें बिल्कुल ठीक हो, कुछ चीजें ना हो। तो वो चीजें आपको शुरू से कुछ अनलर्न करनी पड़ती हैं। प्रोपेगेंडास जो आपके ज़हनों में, हर एक के ज़हनों में बिठाए गए होते हैं, वो थोड़े से दूर करने पड़ते हैं। फिर आप वो आई थिंक स्किल आहिस्ता लर्न करते हो। इट्स नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, काफी टाइम लग जाता है। और फिर भी बायसेस रह जाती हैं। अभी भी मतलब अभी भी अगर आप मेरे से जैसे इतनी बात के बावजूद आप मुझसे अगर पीटीआई वर्सेस नून लीग करो, तो मैं शायद फिर भी पीटीआई की तरफ सिंपैथाइज करूं। तो ये मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है ये बायसेस को अनलर्न करना। एक क्वेश्चन आई हैव जस्ट वन, इफ देयर इज टाइम। पाकिस्तानी मार्केट में थ्राइव करने का लाइक व्हाट वुड योर एडवाइस बी कि पाकिस्तानी मार्केट में कैसे थ्राइव करना है? बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट के होम ग्रोन स्टार्टअप्स, पता नहीं, आई डोंट काउंट करीम एज अ होम ग्रोन स्टार्टअप ऑफ पाकिस्तान, बट वो कम है। मोस्टली एप्स जो यूज हो रही है पाकिस्तान में वो तो बाहर की एप्स हैं। सो ये अच्छा, इसका आंसर वैसे आई थिंक आमिर बेहतर मेरे से कर सकता है, क्योंकि मेरे तो सारे स्टार्टअप्स ग्लोबल हैं। पाकिस्तानी मार्केट में हम लोग मैंने इसलिए नहीं पाकिस्तानी मार्केट में किया क्योंकि मुझे मॉनेटरी वैल्यू नहीं नजर आई कभी भी पाकिस्तानी मार्केट में ऑपरेट करने की। अच्छा, आप मैंने हाँ अदील, बड़ा थैंक यू। मैं थोड़ा सा इस पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टअप पाकिस्तान में रहा है और मैंने पिछले 5 से 6 साल में डेलिबरेटली रेजिस्ट किया है कि मैंने कोई ग्लोबल आइडिया पे काम नहीं किया, या कोई भी मुझे एम्प्लॉयमेंट या अपॉर्चुनिटी मिली है ल्यूक्रेटिव भी, मैंने उसको नहीं लिया, मैंने रेजिस्ट किया है। और इसके मैंने जो काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रोथ नजर आ रही है, आई विल कीप गोइंग देयर। मेरी फिलॉसफी यही थी कि मेरा क्वार्टर ओवर क्वार्टर या मेरी ग्रोथ अगर मुझे नजर आ रही है ना, तो आई शुड कीप गोइंग, ठीक है। तो मैंने आई इन्वेस्ट में 5-5.5 साल काम किया, और उसके बाद आई हैव रियलाइज्ड कि मैं जो हूं ना, इस टाइम मार्केट की ऐसी कंडीशंस हैं कि आई हैव रियलाइज्ड कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता भी नहीं चला कि इस टाइम मैं मार्केट में टॉप 3 स्टॉक मार्केट रिटेल यूजर्स की मेरी ऐप है। और ये मुझे रिसेंटली पता चला, मुझे पता भी नहीं था, ठीक है, कि पाकिस्तान में नो सिंगल प्लेटफॉर्म हैज मोर देन 25,000 रिटेल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, ठीक है। इमेजिन, इस मार्केट में बड़े बड़े बैंक्स भी हैं, बैंक अल्फला की ट्रेडिंग है, जेएस बैंक की ट्रेडिंग है, और बैंक्स भी हैं, बैंक इस्लामिक भी है, 200 के करीब ब्रोकर्स हैं, उसमें से 10-15 बिग हाउसेज हैं, बिग हाउसेज। जेएस बैंक बिग फैमिली है, एकेडी इज अ बिग फैमिली। मेरे यूजर्स एकेडी से ज्यादा है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने पाकिस्तान में काम किया है, एकेडी
जिसने अपना बनाया है, जिसकी जो है ना अरबों का बिजनेस है, ही इज बिलियनर इवन इन डॉलर टर्म्स, ठीक है ना। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई रिसेंटली कम टू नो कि एक कंपनी है BIPL सिक्योरिटीज, उसके 22,000 यूजर्स थे, उसके मैंने वो पढ़ा इन्वेस्टमेंट डेक, उसका जो है ना 22,000 यूजर्स थे और वो 90 करोड़ रुपए की बिकी है अभी साल पहले। 3 बड़े प्लेयर्स ने बेट किया, उसकी उसमें बार्गेनिंग की है, AKD ने बाय किया, वो 90 करोड़ की, 22,000 यूजर्स हैं। मेरे मैट्रिक्स 4 लोगों की टीम है, मेरे मैट्रिक्स, अब तो मार्केट में लोगों को पता चल गया ना, एंड बहुत सी बड़ी पार्टियों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, जब वो उन्होंने देखा यार ये 22 करोड़ रुपए की बिकी, 90 करोड़ रुपए की बिकी है, 22 लाख यूजर्स हैं, तो आमिर के यूजर प्रॉब्ली उससे ज्यादा टेक सेवी होंगे, ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, ठीक है। तो a lot of people have contacted me, a lot of people are coming on the table कि अच्छा जी आप हमसे बात करें, हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, you know, हम कैसे आपके यूजर्स को लेकर हम आगे मार्केट में, we want to get that edge। उसकी एक और चीज भी ये थी कि जब ये सारे सेठ मार्केट में सोए हुए थे, ठीक है, वो मानते ही नहीं थे कि ये ऐप क्या होती है, ये तो कोई यूज ही नहीं करेगा। वो ये एक टिपिकल जो हमारी बहस होती है जी, पाकिस्तान में लोग इतने इंटरनेट यूज नहीं करते, इंटरनेट नहीं है। उसमें एक चीज मिसिंग ये होती है कि यार अभी नहीं है, बट कैन दिस चेंज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो वो किसी के रडार में नहीं था, और वो अब सब वो सेठ जो है वो अपनी नींद से उठे हैं और वो कह रहे हैं अच्छा ये हम बनाएंगे कैसे, उनको एग्जाइटी शुरू होगी यार टेक में एप्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। और वो बनाने के बाद अच्छा कहते हैं अच्छा हमें कम से कम साल लगेगा, इतने पैसे लगेंगे, इस टाइम टेक टैलेंट बहुत महंगा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सो देव रियलाइज कि अच्छा यार हमने आमिर जैसी एप्स जो है ना, अगर उनको हम अक्वायर कर लेना तो वी विल बी, हमें 1 साल 2 साल का कम से कम हमें एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत से मार्केट में ब्रांड बनाया है, पॉजिटिव ब्रांड। मैंने कस्टमर्स को डिसीव नहीं किया, ग्रीडी होकर उनसे पैसे नहीं बनाने की कोशिश की, मैंने उनको सर्व किया, ठीक है। सो समिया, अगर आपकी इस तरह की फिलॉसफी से आप काम करते हैं ना, एंड आई बिलीव, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि जो है ना आई कैन टेक दिस स्टार्टअप टू मीनिंगफुल प्लेसेस, ठीक है। मैं अच्छा कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, अच्छा एग्जिट कर सकता हूँ, या इसी को सोलो भी बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकता हूँ, एंड एट द वेरी लीस्ट इस लर्निंग को मैं कहीं और किसी अच्छी टीम्स में रेप्लिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी रहते हुए थोड़ा जर्नी लंबा जरूर है, मुश्किल जरूर है, मॉनेटरी रिवार्ड्स कम है, जैसे अदील ने कहा कि पाकिस्तान बीइंग इवन द वन ऑफ द पॉपुलस मुस्लिम कंट्रीज, उनका स्टिल रेवेन्यू में नंबर 10th पे है, दैट इज अ रियलिटी, ठीक है। लेकिन मेरी ऐप का जो मोर देन 50% रेवेन्यू है ना, वो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी से आता है, ठीक है। सो आई बिलीव व्हेन ही सेड के पाकिस्तानी, तो वो पाकिस्तान में रहने वालों की बात की है, बहुत से जो यूजर्स जो, ठीक है। सो आई बिलीव कि पाकिस्तान में आप जो भी काम करते हैं ना, और अब ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो पाकिस्तान के बाहर एक्सपेट्रिएट्स रहते हैं ना, वो पाकिस्तान के बारे में पढ़ते बहुत हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, दे आर अप टू डेट ऑन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को छोड़ के कभी नहीं गए पाकिस्तान। तो वो अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज करते हैं ना, तो दे आर योर फर्स्ट यूजर जो आपको सस्टेन करेंगे। उसके बाद ये जो पाकिस्तान में मोहसिन रहमान ये फैक्ट बहुत शेयर करता है कि पाकिस्तान में पिछले 5 साल में 5 करोड़ नए लोगों ने स्मार्टफोन यूज किया है। जस्ट थिंक अबाउट इट, और इमेजिन करो अगले 5 साल में वो लोग क्या नई चीजें करेंगे, और कितने नए लोग और ऐड होंगे। दे विल इवेंचुअली ग्रेजुएट, समझ लें कि उन्होंने अभी प्लेग्राउंड या फर्स्ट ग्रेड में दाखला लिया है, इवेंचुअली वो प्राइमरी करेंगे, मैट्रिक करेंगे, ए लेवल करेंगे, ओ लेवल करेंगे, ग्रेजुएट करेंगे, फिर वो दे विल बी मैच्योर यूजर्स। उस दौरान जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी ना, दे विल रीप दोज रिवॉर्ड्स। आप बाद में आएंगे ना, पाकिस्तान एक यूनिक मार्केट है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। So that's my 2 cents, that's my learning. अच्छा, ये I would agree with it। इसीलिए हम लोग जैसे मिंटर पे बहुत फोकस नहीं कर रहे मार्केटिंग पे, लेकिन हमने मार्केटिंग का थोड़ा सा बजट जरूर एलोकेट किया हुआ है ताकि यूजेज बढ़ती रहे। अक्सर आप लोग अगर पॉपुलर यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, शाबीर जाफरी या ये शाम इदरीस या जैद अली, तो हर 2-3 महीने बाद आपको उनकी स्टोरीज पे सलाम्स की एडवर्टाइजमेंट नजर आती रहेगी। हम थोड़ा थोड़ा लगाते, इसी वजह से लगा रहे हैं कि ग्रोथ रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। हो सकता है इवेंचुअली इकोनॉमी बेहतर हो तो रेवेन्यू पोटेंशियल भी आ जाए। जी, thank you very much. I think it's the right time to go. I know मैं भी नहीं जाना चाह रहा, काफी लोग नहीं जाना चाह रहे। मुझे सिर्फ भूख लग रही है, रोजा अफ्तारी 10 मिनट में है,
that's one. Otherwise, I would love to stay. And मेरा दिन चढ़ गया है, ये देखें आपको रोशनी नजर आ रही है खिड़की में. Thank you very much, Adil, for doing it. I cannot thank you enough, and for being a wonderful person in my life, and for doing great things. And by the way, last question before we go. Are you considering exit? अगर आपको कोई बंदा, let's suppose, millions of dollars cash दे के यार एक startup मुझे बेच दो, will you sell it? Why not? Like basically, look, business is for money. ठीक है, business आप कोई भी बना रहे होते हैं तो वो पैसे के लिए ही होता है. वो it's not, मैंने NGO थोड़ी खोला हुआ है. अगर कोई मुझे अच्छी ऑफर करता है, it meets my valuation, तो I would sell it immediately. Okay, why not? on that note, I think we should say goodbye. And thank you very much again, Adil. Okay, I'll thank put you this everybody. Video, I'll put this video online. Gigi, please, Adil. Okay, Gigi, thank you everybody. Assalamu alaikum. Thank you for your time, sir. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.